Good evening, students. Myself Sandeep Kumar Sharma from my YouTube channel, Mathematics Tutorials. Today here we will discuss about the topic inverse trigonometry 12th class. But before starting the topic, I just want to make some request to you. Please be attentive, and if you don't get any point the first time, then please leave the comments in the comment box, and you can ask the questions. Classroom environment where you can ask the questions, where you can ask your queries and give the response as per your potentials. So without wasting the time, we just start the inverse trigonometry, the second chapter of class 12, the NCERT. Please let us start the inverse trigonometry. The inverse trigonometry function. Before starting the inverse trigonometry function, I just want to give the main definitions of the inverse trigonometry function. But before starting the inverse trigonometry functions, we just want to know about three concepts. First one, the inverse; second one, trigonometry; and third one, the function. So there are six types of the trigonometric ratios. First one, the sine theta; second one, cos theta; third one, tan theta; next one is cot theta, sec theta, and the cosec theta. Clear? I'm repeating myself. Here, first one is the sine theta, second one cos theta, third one tan theta, next one is cot theta, cosec theta, and the cot theta. So, जैसा आप लोग जानते हैं सभी के बारे में कि there is a hypotenuse, triangle behind these trigonometric ratios. These are the ratios of two sides of the right angle triangle. So now we just want to know about the functions. What do you mean by the functions? Main thing is कि function क्या होता है? Functions. Hello. तो functions क्या होता है? Function is a special type of relation. Function is a special type of relation in which each and every element of x, each and every element of x has one and only one image in y. Function is a special type of relation in which each and every element of x has one and only one image in y. कि एक ऐसा रिलेशन आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, तो वहां आपको रिलेशन के बारे में बताया गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन. तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर x के हर एक एलिमेंट की y के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होती है. There is no any extra image of each and every element of x in the y. That means x की हर एक एलिमेंट को अगर आप कोई वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके चलते हैं x की, तो उससे y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकल कर आती है. अगर ऐसा है then it is the function, otherwise not. क्लियर? तो बात समझ में क्या कहता हूं कि x के हर एक एलिमेंट की y के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होती है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं बच्चे? फंक्शन. Function is a special type of relation in which each and every element of x has one and only one image in y. कि x का एक एलिमेंट जो होगा उसको पुट करने से y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकलती है. y के दो अलग अलग आंसर्स नहीं आते ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. x की कोई एक वैल्यू पुट करने से y का सिर्फ एक ही आंसर आपको मिलता है, एक ही रिजल्ट आपको मिलता है. दैट वन इज नोन एज द फंक्शन. यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस लेते हैं, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ था. ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में. मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट वन इज द वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन, it is also known as the injective function. Injective function. Second one is the onto function.
1 to function, it is known as the surjective function. And third one is the many one function. And last one is the invertible function. Invertible function. It is also called the bijective function. Bijective functions. हालांकि इनको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर अच्छे से बताया गया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के, लेकिन इस चैप्टर को डीपली समझने के लिए आपको इन फंक्शंस के बारे में हल्का सा नॉलेज होना चाहिए. First one is the one function, that is known also as the injective function. Second one is the onto function, which is known as the surjective function. Third one is the many one functions, and last one is the invertible function. It is also known as the bijective function. So एक छोटी सी बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर सेकंड इज वेरी इजी चैप्टर, बट अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ते हैं तो बहुत वास्ट है चैप्टर. हालांकि इसकी वेटेज एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5 मार्क्स की रहेगी. It will be appear only 3 to 5 marks in the final examination, but this chapter is very much useful in the other chapters. Chapter number 5, differentiability and the continuity. Chapter number 6, application of derivative. Chapter number 7 is integrals. Chapter number 8 is application of integrals, and chapter number 9 is the differential equation. That means this chapter is used in mostly chapters. तो आप लोगों को इस चैप्टर को समझने के लिए प्लीज आप लोग उसे डीप में समझें. इस चैप्टर को समझाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन हम डेप्थ में समझते हैं, सेकंड वन हमारे पास कुछ टोटके भी हैं. अगर बाय चांस, हालांकि वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीजें कहां से क्या आई, फॉर्मूले कहां से जनरेट हुए, चीजें फंक्शंस का है, रिलेशन फंक्शंस है, डोमेन कैसे निकलती है, रेंज कैसे निकलती है, हर चीज आपको बताई जाएगी. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ द ऑल एफर्ट्स, अगर हम आप लोगों को नहीं समझा पाते किसी कारण से, कहीं कोई कमी रहती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गिव द कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. फर्स्ट वन बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इससे बात करके चलते हैं कि वन वन फंक्शन क्या है. तो वन वन फंक्शन के बारे में बात करें कि वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर each and every element of x has one and only one distinct image in y, or one distinct image in y. क्लियर? मैं रिपीट करता हूँ, वन डिस्टिंक्ट इमेज इन y. डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, डिफरेंट, कि जो इमेज एक एलिमेंट की होगी वो इमेज दूसरे एलिमेंट की नहीं हो सकती. क्लियर? प्लीज फोकस कीजिएगा. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये सेट A है मेरे पास, ये सेट हमारे पास B है. सेट A के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास A, B, C, D, एंड ये P, Q, R, S etc. This one is also T. ये तो every element of X has one and only one distinct image in Y. क्लियर? दोबारा सुनिएगा, each and every element of X, X के हर एक एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल लाइक A की इमेज सपोज दैट R है. क्लियर? तो ये A की इमेज R बन चुकी है. अब ये R जो किसी और की इमेज नहीं बनेगा. R is the image of A. For being a one-one function, each and every element of X has one and only one distinct image in Y. Distinct means different image in Y. And suppose that B की इमेज में T बन चुका है, C की इमेज E हो गया, D की इमेज Q हो गया. क्लियर? तो here each and every element of X, हर एक एलिमेंट X का कोई भी एलिमेंट पुट करने से Y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी. That is called the one-one function. That is also known as the injective function. क्लियर? दोबारा सुनिए कि each and every element of X has one and only one distinct image in Y. कि X के हर एक एलिमेंट की Y के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टिंक्ट इमेज हो. डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब कि जो इमेज X के पहले एलिमेंट की बन चुकी है वो इमेज Y के किसी दूसरे एलिमेंट की नहीं बनेगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं? अगर हम फंक्शंस दी होती हैं तो इसका एक तरीका होता है कि इफ अगर fx1 is equals to fx2,
आप लोगों को 11th क्लास में बताया गया था, यू हैव आल्सो स्टडीड दैट fx इज नोन एज द y, कि fx को आप लोग y कहते हैं। क्लियर? दोबारा सुनिए कि if fx1 equals to fx2, then if it implies x1 equals to x2, then it is the one one function। कि अगर आप लोगों ने fx1 और fx2 इक्वल रखा कि x1 equals to fx2 है, कोई फंक्शन एक दिया गया है, वो आपस में इक्वल दिए गए, then अगर x1 equals to x2 निकलता है, then it is the one one function। तो ये कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है। जैसे कि आपको बताया कि every element of x, कि x फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc। वन की इमेज कितनी है? 2। क्लियर? तो वन की इमेज 2 है, तो अब जो 2 इमेज है किसी और की इमेज नहीं बनेगा। 3 की इमेज 4, 5 की इमेज 6, 7 की इमेज 8, 9 की इमेज 10 etc। हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, सो दैट्स इट इज नोन एज द वन वन फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ऑन टू फंक्शन। मैं बात करता हूं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इसमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो मेन जो चीज फोकस है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि y के सारे एलिमेंट्स यूज हों। इट्स नॉट कंपल्सरी कि y के सारे एलिमेंट्स यूज हों, लेकिन यहाँ x के सारे एलिमेंट्स यूज होंगे और उसकी y के अंदर एक सिंगल इमेज होगी। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन in which some elements of y are the image of all elements of y are the image of some elements of x, कि y का हर एक एलिमेंट इसके अंदर यूज होना जरूरी है। सम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y का हर एक एलिमेंट यूज होगा। अगर y का हर एक एलिमेंट यूज है तो वहां पर तो वो जो सा फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन y का हर एक एलिमेंट यहां कहां से निकलता है? कोडोमेन, सेकंड सेट से। कोडोमेन से y का हर एक एलिमेंट यूज है। आपको शायद बताया गया था 11th क्लास के अंदर, अगर सेट ये a दिया हुआ है, ये सेट b दिया हुआ है, तो रेंज जो डोमेन निकलती है वो कहां से निकलती है? सेट a से। दैट मींस वैल्यूज ऑफ x, इन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और रेंज कहां से निकलती है? रेंज निकलती है सेकंड सेट से, दैट इज नोन एज द रेंज। लेकिन सेकंड सेट, कंप्लीट सेट ऑफ सेकंड, कंप्लीट सेकंड सेट इज नोन एज द कंप्लीट सेकंड सेट, इट इज कोडोमेन। इसे क्या कहते हैं आप लोग बेटा? तो कोडोमेन। जहां आपको क्या बताया अभी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y का हर एक एलिमेंट, अगर हर एक एलिमेंट क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। इमेज बनेगा तो रेंज हो जाएगा। अगर y का हर एक एलिमेंट, और सुनिएगा, y का हर एक एलिमेंट अगर रेंज बन जाता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। दैट मींस फॉर बीइंग एन ऑन टू फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन होने के लिए, फॉर एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन होने के लिए रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए? कोडोमेन। क्योंकि यहाँ पर रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y और कोडोमेन मतलब सेकंड सेट कंप्लीट। अगर हर एक एलिमेंट, सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट क्या बोलते हैं उसको, यूज हो रहा है, तो उससे आप लोग क्या बोलते हैं? वैसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला टॉपिक है, द लास्ट है हमारे पास मैन्युअल फंक्शन। मैन्युअल फंक्शन के बारे में बात करें। मैन्युअल फंक्शन, मैन्युअल फंक्शन क्या है? मैन्युअल फंक्शन के अंदर जिसके अंदर x के डिफरेंट एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होती है y के अंदर। एनी फंक्शन इन विच सम एलिमेंट्स ऑफ x have is same या कॉमन इमेज इन y, कॉमन इमेज इन y, कि x के कुछ अलग अलग एलिमेंट्स की y के अंदर एक कॉमन इमेज होती है, उससे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? कि मैन्युअल फंक्शन। फॉर एग्जांपल लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज द a b c and d, वन की इमेज b,
2 की इमेज बी, 4 की इमेज सी, 3 की इमेज ए, 5 की इमेज सी। बहुत समझ में यहाँ पे, यहाँ पर ये वन वन फंक्शन क्यों नहीं है? वाई इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स का जो हर एक एलिमेंट है उसकी वाई के अंदर डिफरेंट इमेज नहीं है। एक्स के हर एक एलिमेंट की अगर वाई के अंदर डिफरेंट इमेज हो, यूनिक इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो, then it is the one one function. But here the every element of x doesn't have the common or different image in the y, so that's why it is not the one one function. लेकिन ये मैनी वन फंक्शन क्यों है? मैनी वन फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x के कुछ एलिमेंट्स, x का एलिमेंट 1, x का एलिमेंट 2, इनकी कॉमन इमेज कौन सी है? b। x का एलिमेंट 3, इसकी इमेज a। x का एलिमेंट 4 और 5, इनकी कॉमन इमेज कौन सी होगी? c। so that's why it is the many one function. क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूँ, वो सुनना, एक ये आपका फंक्शन हो गया 1 2 3 4 a b c d e, 1 की इमेज b, 2 की इमेज c, 3 की इमेज d और 4 की इमेज a। यहाँ पर x के हर एक एलिमेंट की y के अंदर अलग अलग इमेज है, so that's why it is the one one function. This one is the many one function. It is also known as the onto function because here each and every element of y is used, whether unique image है या नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर जो है सेम, इनसे हम लोग बात करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y, सॉरी y का हर एक एलिमेंट यूज नहीं है, बट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ, दिस वन 6 और 6 की इमेज d बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स जो दैट्स इट इज द ऑन टू फंक्शन। तो मेनली अभी हम लोगों ने मोटा मोटा जनरली पढ़ा कि इसके अंदर हम तीन फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस हैं? फर्स्ट वन इज द one one function, second one is onto function, third one is the many one function. दोबारा सुनिएगा, ठीक है? फर्स्ट वन इज द one one function, second one onto function, third one is the many one function. लेकिन जो मेनली हमारे पास यहाँ पर यूज होंगे वो फंक्शंस दो यूज होंगे। फर्स्ट वन इज द one one function and second one is the onto function. तो इन दो फंक्शंस को आप लोग फोकस करेंगे क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोगों ने सिर्फ मेन बात की थी इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते क्या है आखिर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनवर्स के बारे में। तो इनवर्स फंक्शन केवल तभी निकलेगा जब वो इन्वर्टिबल होगा। इनवर्स फंक्शन केवल तभी निकलेगा, किसी भी चीज का इनवर्स निकालना चाहेंगे तो इनवर्स केवल तभी निकलेगा जब वो इन्वर्टिबल होगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है ही नहीं तो उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? व्हेन अ फंक्शन इज नोन एज अ इन्वर्टिबल फंक्शन। एक फंक्शन को आप इन्वर्टिबल फंक्शंस तब बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन तब बोलते हैं जब बेटा ये वन वन फंक्शन भी होता है, तो वन वन फंक्शन एंड सेकंड वन इज द ऑन टू फंक्शन। जब फंक्शन वन वन फंक्शन भी होता है और ऑन टू फंक्शन भी होता है। अगर एक फंक्शन वन वन भी है, वन मतलब fx1 इक्वल्स टू fx2, देन हर एक एलिमेंट की y के अंदर डिफरेंट इमेज है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर कोडोमेन शुड बी इक्वल्स टू कितना बेटा? रेंज। क्लियर? तो ये दो बातें आपको ध्यान रखकर चलने की। एक फंक्शन हमारे पास अभी आपको बहुत ज्यादा डीप रिलेशन फंक्शन का नहीं बताया जा रहा, मेनली यहाँ पर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि एक फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, इनवर्स कब निकाल सकते हैं फंक्शन का। एक फंक्शन का इनवर्स केवल तभी निकाल सकते हैं जब वो इन्वर्टिबल होता है। और फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? व्हेन इट इज द वन वन फंक्शन एंड द ऑन टू फंक्शन। क्लियर? When a function is a one-one function and the onto function, then the function is called the invertible function. तो mainly focus हम लोगों ने यहाँ करना है फर्स्ट वन की फंक्शन वन-वन होना चाहिए और सेकंड फंक्शन कैसा होना चाहिए? onto। अगर फंक्शन वन-वन भी हो और onto भी हो तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, बड़े गौर से सुनिएगा प्लीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसा कि आप लोग 10th में 11th में स्टडी कर चुके हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। अब हम ये आज पता लगा रहे हैं कि फंक्शन जो sin x फंक्शन है, cos x फंक्शन है, tan x फंक्शन है, cot x फंक्शन है, क्या फंक्शन वास्तव में इन्वर्टिबल है भी या नहीं है, क्योंकि इनका इनवर्स केवल तभी निकलेगा जब ये इन्वर्टिबल होंगे। अगर ये इन्वर्टिबल ही नहीं होंगे तो इनका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक whether the given functions are invertible or not. If the functions are invertible, then we can find the inverse of the functions. So first of all we have to check whether the functions are invertible or not. Let us start with the one fx. Let
हम बात करते हैं लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। क्लियर? एफ एक्स आप लोग लेट कर लेते कितना साइन ऑफ एक्स, क्योंकि आप जानते हैं एफ एक्स को आप लोग अपने कन्वीनियंट के लिए y भी कंसीडर करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू y होता है, एफ एक्स को आप लोग y भी कहते हैं, सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, y इक्वल्स टू sin x। अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूं y इक्वल्स टू sin x का मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, बड़े गौर से ना कि इनका ग्राफ, हालांकि आपको 11th क्लास में सिखाया गया था कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच एंड एवरी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x tan x cot x, लेकिन फिर भी कई को नहीं पता तो उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कर करते हैं। सपोज दैट व्हेन गॉस सुनिएगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल टू 0 हो देन y इक्वल्स टू कितना होगा, y इक्वल टू sin 0, और sin 0 कितना होती है 0। एंड जब x equals to pi by 2 90, then y equals to कितना होता है बेटा, y equal to sin pi by 2 and sin pi by 2 equals to कितना 1। when x equals to pi then y equals to sin pi, then sin pi equals to कितना होगा 0, क्योंकि sin n pi is always equals to कितना होता है बेटा 0। when जब x equals to कितना होगा बेटा 3 pi by 2, then y equals to कितना बेटे sin 3 pi by 2 and sin 3 pi by 2 equals to कितना -1। when जब x equals to 2 pi then y equals to कितना sin 2 pi and sin 2 pi equals to कितना 0। सिमिलरली अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके चलता हूं, when x equals to -pi by 2, x equals to -pi by 2, then y equal to sin minus pi by 2। आप लोगों ने एक 11th क्लास फॉर्मूला पढ़ा था sin minus थीटा, sin minus थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बेटा माइनस sin थीटा माइनस sin pi by 2 एंड sin pi by 2 कितना होता है 1, तो -1। सो व्हेन x इक्वल्स टू minus pi by 2 देन y इक्वल्स टू -1। व्हेन जब x इक्वल्स टू minus pi देन y इक्वल टू sin minus pi एंड sin minus pi, sin minus theta equals to minus sin theta minus sin pi and sin pi equals to कितना 0, से कितना हो गया 0। सो इस तरह से हम लोग कुछ वैल्यूज निकालते हैं, टेबल बनाते हैं ताकि उसमें हमेशा ग्राफ ड्रॉ कर सके इजीली। x y, x 0 तो y 0, x pi by 2 y कितना हो गया बेटा 1, x pi y कितना हो गया 0, x 3 pi by 2 3 pi by 2 y कितना -1, x 2 pi y कितना 0। अगर मैं बात करता हूँ और आगे x y, x मिलेगा -pi by 2 तो y कितना -1, x -pi y 0, -3 pi by 2 y कितना -1 एटसेट्रा। तो अब इनके ग्राफ का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे बड़े गौर से सुनिएगा। ये आप लोग ग्राफ ड्रॉ करें, बड़े गौर से ना ग्राफ, क्योंकि जो है यहाँ पर डोमेन और रेंज का पंगा सिखाना है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi इधर -pi by 2 -pi -3 pi by 2 माइनस का 2 pi y इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1। एक छोटी सी बात, डोमेन, डोमेन का मतलब, डोमेन मींस गौर सुनो, डोमेन मींस कि each set of all the values of x, डोमेन का मतलब डोमेन set of all values of x। तो आप लोग यहां देखिए कि आप यहां पर x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो दैट द फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड, फंक्शन रियल रहे और डिफाइंड रहे। तो आपने देखा x की वैल्यू 0 पुट करी, हमने pi by 2 पुट करी, pi पुट करी, और pi को आपको 22/7 भी बोलते हैं, याद आप लोगों को क्लियर कि pi रेडियंस इक्वल्स टू 22/7, pi ऑफ द प्लस 22/7 होता है। सो अगर मैं इसमें रियल नंबर में कन्वर्ट करता हूं, रेडियन फॉर्मेट इज द रियल नंबर फॉर्मेट ऑफ द एंगल, तो अगर मैं इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करूं तो 22/7/2 यहां कितना होगा 22/7, ये 3/2 into 22/7। सो आप x की तो हर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x तो क्या होगा हर एक वैल्यू मतलब रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ sin x कितना हो गया, डोमेन ऑफ sin x
कितना बेटा जी, ऑल द रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू, सॉरी दैट मींस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बड़े गौर से समझो। अब x0 y0, x पाई बाय 2, y कितना हो गया 1, x 3 पाई बाय पाई, x अगर पाई हो तो कितना होगा, x पाई तो y कितना हो गया 0। क्लियर। नेक्स्ट वन, x 3 पाई बाय 2 तो y कितना हो गया -1, x अगर 2 पाई तो y कितना 0। तो बच्चे ये ग्राफ कुछ यूं बनकर आ गया। क्लियर। ये आगे भी जा रहा है, इसी तरह से मैं इसको इधर लिखता हूं तो माइनस तो कितना हो गया -1 0 माइनस +1 एंड 0 एटसेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट तो आपके पास मतलब ये चीजें आप एक ग्राफ बनकर आ गए। अब बड़े गौर से यहाँ पर लिखते हैं। अब मैं बात करता हूँ ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, कि sin x जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यही तो चेक करना था कि फंक्शन इनवर्स केवल तभी निकाला था जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अगर एक फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है देन वी कांट फाइंड द इनवर्स। तो यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या एक फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल फंक्शन होता कब है, जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता। अब हम चेक करना कि 1 1 का मतलब क्या है, 1 1 का मतलब कि x के हर एक एलिमेंट की y के अंदर डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इमेज हो। x के हर एक एलिमेंट की, x की से मैंने वैल्यू पुट करी तो y कितना आ गया, y 0 आ गया। जब x मैंने y पुट किया तो y कितना हो गया 0। y x के दो अलग अलग एलिमेंट्स की, x की दो अलग, फॉर एग्जांपल कितनी आ गई, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, दिस वन इज 2 पाई एंड सो ऑन। और यहां -1 और -1, 0 की इमेज कितनी थी बेटा 1, 0 की इमेज 0 की इमेज 0, 0 की इमेज 0 आ गई इसके अंदर बेटा 0 आ गई। ठीक है। उसके बाद आंसर है 0 की इमेज 0, पाई बाय 2 की इमेज कितनी आ गई बेटा, पाई बाय 2 की इमेज आ गई 1, पाई बाय 2 की इमेज आ गई 1, पाई की इमेज कितनी आ गई बेटा 0। तो यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज हो गई y के अंदर। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द वन फंक्शन, इट इज द मैनी वन फंक्शन। तो ये वन फंक्शन नहीं है। और अगर वन फंक्शन ही नहीं है तो इट इज नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन, एक इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। गॉस ने क्या कहा कि क्योंकि ये वन फंक्शन नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द इन्वर्टिबल फंक्शन। For being an invertible function, there are two basic conditions. First one, the function should be one function, and second function should be an onto function. अगर इन दोनों में से या फंक्शन वन वन ना हो या फंक्शन ऑन टू ना हो तो उसे आप लोग इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं कह सकते। सो पहले आप लोगों ने चेक किया कि फंक्शन वन वन है, तो आप लोगों ने जब चेक किया कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो हियर द फंक्शन इज नॉट द वन वन फंक्शन। So that's why the basic condition is not fulfilling. So that's why it is not the invertible function. तो अगर इन्वर्टिबल बनाना है हमको कि फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाए, इनवर्स बन जाए, तो हमें कुछ ऐसा स्पैन लेना पड़ेगा, ऐसी कैटेगरी, ऐसी रेंज लेनी पड़ेगी, ऐसे जो है ब्लॉक लेना पड़ेगा जिसके अंदर फंक्शन इन्वर्टिबल, मतलब जहां x की कोई भी वैल्यू पुट करने से दो x की अलग अलग वैल्यू पुट करने से y की सेम वैल्यू ना आए। बड़े गौर सुनना, अगर मैं बात करता हूं यहां इस पेन की बात करता हूं, मैं यहां से लेके यहां तक की बात करता हूं, बड़े गौर सुनना इस जगह अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, यहां पर x की अलग अलग वैल्यू पुट करने से, x की अगर मैं ये कोई वैल्यू पुट करता हूं तो y वैल्यू इतनी आती है, x की वैल्यू मैं ये पुट करता हूं तो y वैल्यू इतनी आती है। तो x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू आ रही है। बोलिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर x की दो अलग अलग वैल्यू पुट करने से y की सेम वैल्यू आ रही है, y की सेम वैल्यू। सो दैट्स इट। अगर आपके पास यहां पर y की सेम वैल्यू है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये स्पैन नहीं ले सकता। अगर मैं स्पैन ये लेता हूं, और सुना, अगर मैं स्पैन ये लेता हूं, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक का स्पैन इस, तो इस जगह इस स्पैन के अंदर बड़े गौर से सुनिएगा, इस स्पैन के अंदर इन दिस स्पैन अगर आप x की कोई वैल्यू पुट करते हो, आपने x की वैल्यू पुट करी ये तो y वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू पुट करी y वैल्यू कितनी आ गई है, x वैल्यू पुट करी ये y वैल्यू कितनी आ गई है। सिमिलरली x इज दिस तो y इतना आया, x ये तो y इतना, x ये तो y इतना। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब है, फंक्शन इन्वर्टिबल कहां है, इन्वर्टिबल फंक्शन कहां है, इस स्पैन के अंदर। अगर मैं पूरा लेके चलता हूं, साइन का कर्व ये बनता मतलब साइन कर्व ये, तो इस साइन कर्व के अंदर ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए आप लोगों ने एक ऐसा स्पैन तैयार करना है, एक ऐसी कैटेगरी तैयार करनी है जिसके अंदर फंक्शन 1 1 हो। अब यहां पर आप लोगों ने देखा, अगर मैं इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में लेता हूं, यहां से यहां तक का
बॉन्ड ले लेता हूँ, तो इसके अंदर x की एक डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू निकल आती है। जब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू निकल कर आपके तीन फंक्शन कैसा हो गया 1 1, और ऑन टू फंक्शन था कि यहाँ पे तो y की वैल्यू यूज होगी सारी, तो यहाँ पर जो है y की रेंज थी कौन सी थी, -1 और 1 थी बेटा। तो यहाँ पर जो है फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सो दैट्स इट इज अ इनवर्टिबल फंक्शन। लेकिन कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी -1 से कितना बेटा, और -π/2 से कितना, पॉजिटिव π/2। अगर x की वैल्यू -π/2 से पॉजिटिव π/2 होती है, गौर से ना, अगर x की वैल्यू -π, हालांकि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर थी, लेकिन जब x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होती है तो फंक्शन y sin x, अगर x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होती है देन y sin x इज नॉट एन इनवर्टिबल फंक्शन। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू -π/2 से पॉजिटिव π/2 लेके चलता हूं, ये स्पैन लेके चलता हूं, तो इस स्पैन के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू x की, तो मतलब हर एक वैल्यू x की एक डिस्टिंक्ट इमेज लेके चलते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज द इनवर्टिबल फंक्शन इन द स्पैन कितना, इतना। वैसे अब बड़े सुनना, वैसे अगर जनरली बात करते हैं तो वैसे जनरली sin x फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन sin x लेके चले आप लोग, fx sin x, तो यहां पर डोमेन कितना आता है, डोमेन आता है ऑल द रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर, मतलब दैट इज माइनस नॉट डिफाइंड से पॉजिटिव नॉट, क्योंकि आपको पता था इस टाइम के x होता है और यहां पर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई ये हो गया ऑल द रियल नंबर्स। अगर आप लोगों ने जैसे किसका यूज किया, y sin x का यूज किया, तो जब y sin x होगा तो यहां पर जो डोमेन होगा वो ऑल द रियल नंबर्स होगा, कि रेंज जो होगा, रेंज रेंज की वैल्यू, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y, तो आपने देखा था वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y कितनी थी, या तो यहां पे थी या यहां, इससे ऊपर नहीं गई, इससे नीचे नहीं गई, तो y की वैल्यू कितनी, -1 से पॉजिटिव, सो y की वैल्यू कितनी होगी, -1 से पॉजिटिव। लेकिन ये फंक्शन बड़े गौर से ना, ये फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन नहीं था। अगर फंक्शन इनवर्टिबल निकालना है तो अपना फंक्शन इनवर्टिबल कब था, जब बेटा जी यहां पर x वैल्यू कहां से कहां तक लेके चलेंगे, x वैल्यू -π/2 से कितना, पॉजिटिव π/2, यहां से लेके और यहां तक। इस स्पैन के अंदर x की अलग-अलग वैल्यूज के लिए y की अलग-अलग वैल्यूज कंसीडर की गई थी। अगर यहां पर x की कोई अलग वैल्यू पुट करते y की अलग वैल्यू आती है, सो दैट्स व्हाई इट इज द इनवर्टिबल फंक्शन इन द इंटरवल -π/2 से कितना, पॉजिटिव π/2। क्लियर है? तो अगर आप डोमेन, बहुत सुनो, अगर आप डोमेन -π/2 से पॉजिटिव π/2 लेके चलते हो तो वो फंक्शन कैसा होता है, इनवर्टिबल फंक्शन। और आपको एक बात बताई गई थी कि एक फंक्शन जब इनवर्स फंक्शन होता है तो वहां पर डोमेन्स रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, रेंज जो होती है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि रेंज एंड डोमेन आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर इन केस ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगर फंक्शन इनवर्स दिया गया होगा तो इनवर्स फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज आपस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर अब जब fx sin x था, दैट मींस y sin x था, देन x sin का काम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, x sin इनवर्स y। तो अगर फंक्शन sin इनवर्स है, अगर sin इनवर्स फंक्शन है तो वहां पर बेटा जी डोमेन क्या हो जाएगा, बेटा डोमेन जो उसमें रेंज थी वो डोमेन बन जाएगा, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगा। तो बेटा जी यहां पर रेंज क्या होगा, डोमेन हो जाएगा -1 से +1 और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से कितना बेटा, +π/2। मैं रिपीट करता हूं, बड़े गौर सुनो कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जो हमने इतना लंबा टॉपिक खींचा, हालांकि टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, ये बल्कि उनसे फंक्शन कहाँ से आएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन से। लेकिन ये चीजें आई कहाँ से, ये चीजें बताने के लिए आप लोगों को ये चीज बताई गई कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन सी वैल्यूज होती हैं और वहां पर फंक्शन किस तरह से इनवर्टिबल प्रूव होता है। तो फंक्शन इनवर्टिबल प्रूव होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ वन वन फंक्शन, इट शुड बी एन ऑन टू फंक्शन। अगर फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, तो ही ये फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन हो सकता है। लेकिन जब y sin x लिया तो यहाँ पर आपने देखा कि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हो। जब x की ऑल रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हो तो वहां पर x की दो अलग-अलग वैल्यूज के लिए y पर एक ही आंसर आया था। भाई x के लिए आपने ये पुट करके x1 पुट किया तो y आ गया, ये जब ये x2 पुट किया तो y कितना आ गया, ये तो x1 और x2 की दो अलग-अलग वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू आ गई। सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट द वन वन फंक्शन। और वन वन नहीं होगा तो बेटा ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। अब इन्वर्टिबल नहीं होगा तो बेटा उसके बाद से हम लोगों ने क्या करना, इसको इन्वर्टिबल बनाना था। इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या स्पैन लिया जिसके अंदर x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम ना हो। अगर हम x की अलग-अलग वैल्यू लेके चलते हैं तो y विल सेम ना हो, तो y विल सेम नहीं हो तो स्पैन कौन सा रहेगा, ये स्पैन है।
इस स्पैन के अंदर बेटा जी कि x की कोई भी वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू सेम और सेम नहीं आ रही, सो दैट्स व्हाई इस इंटरवल के अंदर, इस रेंज के अंदर इसका फंक्शन कैसा है, इनवर्टिबल। और जब इनवर्स निकालते समय जो रेंज होती है वो डोमेन में कन्वर्ट होती है, डोमेन जो होता है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस कारण से जब साइन इनवर्स x लेके चलो, साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है -1 to 1 और रेंज कितना होता है -π/2 से +π/2। क्लियर। नाउ हम बात करते हैं कोस फंक्शन के बारे में। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम कोस फंक्शन का भी ग्राफ कवर ड्रॉ किया हुआ है, तो दोबारा देखते हैं कोस फंक्शन पर प्लीज फोकस कीजिएगा। y equals to cos x, y equals to cos x। तो y equals to cos x के बारे में बात करते हैं। जब y equals to cos x लेके चलते हैं तो इसका भी पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले ये चेक करेंगे कि क्या y equals to cos x, ठीक है। दोबारा सुनो कि y equals to cos x फंक्शन जो है, इसको अगर हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं बड़े गौर से। y equals to cos x, if x equal to 0, अगर x 0 हो तो y का वैल्यू कैसे देना, y is equals to कितना हो गया, y equal to cos 0, और cos 0 कितना होता है बेटा 1। क्लियर। if अगर x equals to π/2, अगर x π/2 हो देन y equals to कितना हो गया cos π/2, और cos π/2 कितना बेटे 0। सिमिलरली if अगर x equals to आप पाई लेके चलते हो देन y equals to कितना cos pi, और cos pi की वैल्यू कितनी होती है -1। नेक्स्ट वन, if x equals to 3π/2 लेके चले देन y is equals to कितना बेटा जी cos 3π/2, और cos 3π/2 कितना होता है बेटा, cos 3/2 equals to 0। एंड if x equals to 2π लिया आप लोगों ने देन y is equal to cos 2π, और cos 2π कितना बेटा जी 1। क्लियर। अगर इसी को नेगेटिव में लेकर चले आप लोग बेटा, तो if x equals to -π/2, और बेटा y कितना हो जाएगा देन y is equals to cos -π/2, और cos माइनस थीटा, जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया था, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है पॉजिटिव cos π/2, और cos π/2 कितना होता है बेटा, यस किसी को पता है cos π/2 इक्वल्स टू कितना 0। नेक्स्ट वन, if अगर x equals to -π then y equals to cos -π and cos minus theta equals to minus positive cos theta, so cos pi, और cos pi की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी -1। सो आपके पास कुछ वैल्यूज निकल कर आ गई, बड़े गौर सुनेगा इन वैल्यूज के बारे में। ये x और ये y। जब x आप लोगों ने 0 पुट किया था तो y कितना आया था बेटा, y आया था 1। जब x π/2 था तो y था कितना बेटा, x π/2 y कितना था 0। x जब पाई था तो y था कितना -1। x जब 3π/2 था y था कितना 0। x 2π था तो y कितना था बेटे 1। x -π/2 था y 0, x -π था तो y 1। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बट ध्यान रखना इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ x 0 0 π/2 pi 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इधर 1 और ये -1। x0 y1, x0 पे y1, x0 y1, उसके बाद x π/2 y0, x π/2 y0, x pi पर y -1, तो ये कुछ न्यू मंत्र आ गया। x के वैल्यू कितना 0,
x2 पाई पे 1, x2 पाई पे 1। अब इधर मैं मूव करता हूँ x माइनस पाई पे 2, माइनस पाई पे 2 कितना 0, माइनस पाई पे -1, ये भी मूव करेगा, ये आगे निकल जाएगा। तो ये फंक्शन कुछ किसका होता है कॉस। अब बड़े गौर से ना, अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये वन फंक्शन वन वन है या फिर नहीं है। दोबारा देखो, x की वैल्यू ये पुट करी, कुछ भी है, x की वैल्यू ये पुट करी, x की वैल्यू ये पुट करी, x की दो अलग अलग वैल्यू पुट करने से y का सेम आंसर आ गया। फिर x की वैल्यू आपने x1 पुट किया, y ये आ गया, y की x2 पुट किया, y ये आ गया। जब x1 और x2 अलग अलग पुट किया आप लोगों ने, गौर सुना, जब x1 और x2 अलग अलग पुट किया तो वहां पर y का दो सेम आंसर आ गया। अगर x की अलग अलग वैल्यू पुट करने से y के अलग अलग आंसर, देन फंक्शन बनना होता है, अदरवाइज फंक्शन बनना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर x की दो अलग अलग वैल्यू पुट करने से y का सेम आंसर आ गया, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन है, फंक्शन तो ये भी ऑड नहीं हो, सॉरी ये भी इन्वर्टिबल नहीं। अब इसको भी इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें कोई ऐसा स्पैन चूज करना है, एक ऐसा कैटेगरी, एक ऐसी रेंज चेक करनी है जिसके अंदर एक x की वैल्यू पुट करने से y का सेम आंसर ना आए। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहां से अगर मैंने इस पेन को चूज किया है, गौर सुनना, अगर मैं इस पेन को -5/2 से +5/2 लेके चलता हूं, बड़े गौर सुनना, अगर -5/2 से +5/2 लेके चलता हूं तो यहां पर x की वैल्यू पुट करने से दो अलग वैल्यू का y का सेम आंसर आता है। तो इस पेन का फंक्शन इन्वर्टिबल हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें फंक्शन इन्वर्टिबल बनाना है तो मैं स्पैन कौन सा यूज कर ले बेटा, स्पैन यूज कर ले कौन सा 0 से पाई। क्यों, गौर सुनना, इस स्पैन के अंदर, इस टाइम x की वैल्यू ये पुट करी, y का ये आंसर आ गया, x की वैल्यू ये पुट करी, y का ये आंसर, x की वैल्यू ये पुट करी, y आ गया, x ये पुट किया, y, x ये पुट किया, y। तो x की अलग अलग वैल्यूज पुट करने से आप लोगों ने देखा कि आपने यहां से पुट किया, x की वैल्यू y आ गया, x यहां पुट करने से y ये आया, x ये पुट करने से y आया, x ये पुट करने से y आया, सिमिलरली x ये पुट करने से y ये, x ये पुट करने से y ये, x ये पुट करने से y ये। Each and every element of x has the distinct image in the y। अगर मैं सिर्फ y equals to cos x के बारे में बात करता हूँ, बस ना, y equal to सिर्फ cos x के बारे में बात करता हूँ, तो y equal to cos x हो तो यहाँ पर आप x की each and every वैल्यू पुट कर सकते हैं। each and every वैल्यू का मतलब हो गया रियल नंबर, तो डोमेन तो कितना हो गया, डोमेन हो गया all the real numbers, that means minus not defined to positive not defined। अगर मैं cos x की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन cos x की बात की है, इनवर्स की बारे में बात नहीं किया। जब y इक्वल्स टू cos x हो तो डोमेन r इक्वल्स टू कितना, ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर माइनस नॉट डिफाइंड से पॉजिटिव नॉट डिफाइंड। और रेंज कितनी कर दी यहाँ पर, यहाँ रेंज कितनी आई, फिर आपने देखा कि वैल्यू कितनी 1 आई, 0 आई, -1, फिर 0 फिर 1, मतलब कोई भी वैल्यू थी, जैसे x की जैसी मर्जी वैल्यू हो, तो y का जो आंसर आया वो -1 से छोटा नहीं है और +1 से बड़ा नहीं है। तो रेंज कितनी होगी बेटा, -1 से +1। क्लियर। लेकिन इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। अब अगर मुझे फंक्शन इन्वर्टिबल बनाना है तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए मुझे कौन सा स्पैन यूज करना है, इस स्पैन से इस स्पैन, 0 से कहां तक बेटा, पाई। अगर मैं 0 से पाई यूज करता हूं, बहुत सारा मैं 0 से पाई यूज करता हूं, तो 0 से पाई यूज करने पर x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का डिफरेंट आंसर है। सो यहाँ पर फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो cos इनवर्स की रेंज क्या, इन्वर्टिबल होगा जब रेंज कितनी होगी, और एकदम मैं लिखता हूं -π/2 से पॉजिटिव। अगर माइनस हो, माफी चाहूंगा, अगर मैं 0 से पाई, अगर मैं 0 से पाई यहां से यहां तक का स्पैन फंक्शन कैसा बन जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए मुझे जब y cos है उसकी रेंज को डोमेन क्या लेना पड़ेगा, 0 से कितना, पाई, और रेंज क्या बन जाएगी, भाई 0 से पाई की रेंज क्या है, भाई -1 भी था पॉजिटिव भी था, तो -1 से कितना, +1। सो अगर फंक्शन मुझे इन्वर्टिबल बनाना है तो जो डोमेन होगा वो -0 से पाई हो जाएगा, रेंज जो होगा वो -1 से कितना होगा, +1। अब जब ये फंक्शन इन्वर्टिबल बन गया है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। जब इनवर्स निकाल सकते हैं तो x कितना हो गया, cos इनवर्स y। जब x cos इनवर्स y होगा तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी, ये अभी आपको बताया था, जब डोमेन को कन्वर्ट करते हैं रेंज में और रेंज को कन्वर्ट करते हैं डोमेन में तो फंक्शन इनवर्स हो जाता है। मतलब इनवर्स फंक्शन के दौरान डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज्ड विद ईच अदर। सो बच्चे x cos इनवर्स y किया तो यहाँ पर डोमेन कितना आ गया बेटा, डोमेन जो उसमें रेंज था, मतलब -1 से कितना,
पॉजिटिव एंड रेंज कितना आ गया, रेंज आ गया -π/2 से कितना बेटा जी, पॉजिटिव π/2। क्लियर। दोबारा सुनिए क्या कहा कि यहाँ पर जो अभी आपको फंक्शन सिखाया गया sin x का, फंक्शन सिखाया cos x का, हालांकि हल्की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीजें आपने सीखा था ग्राफ के बारे में इसकी, लेकिन हल्का सा यहाँ पर आप लोगों ने सीखा कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है। फंक्शन इनवर्टिबल केवल तभी होगा जब फंक्शन वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा। मेन जो मुद्दा था आज की क्लास का वही था कि वन वन फंक्शन कहाँ है, ऑन टू फंक्शन कैसे है। अगर वन वन फंक्शन नहीं होगा या ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो फंक्शन इनवर्टिबल नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम बात इनवर्टिबल के बारे में ही कर रहे थे, और इनवर्टिबल होने के लिए वन वन फंक्शन चेक किया। जब हमने sin x को चेक किया तो sin का कुछ यूं बन कर आया, sin ग्राफ कुछ यूं बन कर आया। तो यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू पुट करने से y का सेम आंसर नहीं आया, तो सारे सेम आंसर है। x की ये वैल्यू पुट करके तो ये आ गया, x के लिए पुट करके तो ये आ गया। क्लियर। x की ये वैल्यू पुट करके ये आ गया, x के लिए पुट करके तो ये आ गया। तो यहाँ पर x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए y का सेम आंसर आ गया, x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए y का सेम आंसर आ गया। सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट द इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल बनाने के लिए मुझे कोई ऐसा स्पैन चूज करना है इसके अंदर जिसके अंदर x की किसी वैल्यू के लिए y विल रिपीट ना हो। सो मैंने इस स्पैन को यहां से यहां तक यूज कर दिया। तो जब आप लोगों ने sin x को इनवर्टिबल बनाया तो वहां पर ये मजबूरी हो गई थी कि हमें आपस रेंज कहां से कहां लेंगे, -π/2 से कितना, पॉजिटिव π/2। तो इसके अंदर ठीक है इसके अंदर अपने पास है आपने दिया, दुआ सुनिए कि y इक्वल sin x दिया, तो इसके अंदर वैसे तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इसका है ऑल द रियल नंबर्स। लेकिन जब इस फंक्शन को इनवर्टिबल फंक्शन बनाऊंगा, अब ये इनवर्टिबल नहीं है, लेकिन जब इसको इनवर्टिबल बनाएंगे तो हमें इसकी डोमेन कहां से कहां लेनी पड़ेगी, -π/2 से पॉजिटिव π/2। क्यों? क्योंकि इनवर्टिबल तभी होगा जब वन वन होगा, और वन वन क्यों तब है जब वो -π/2 से कहां तक है, पॉजिटिव π/2। तो -π/2 से पॉजिटिव π/2 लिया आप लोगों ने, तो उसके अंदर फंक्शन कैसा बनने की हिम्मत रखता है कि हाँ वो इनवर्टिबल बनने की हिम्मत रखता है। और यहाँ पर रेंज कितनी थी, इसकी रेंज थी -1 से कितना, पॉजिटिव 1। लेकिन जब हम इसका इनवर्स, ये इनवर्टिबल हो चुका है इसके अंदर, जब अब ये इनवर्टिबल हो चुका है, जब इनवर्स निकालेंगे तो डोमेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेंज में, और रेंज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में। तो जब साइन इनवर्स का आप लोग डोमेन निकालेंगे तो जो इसमें रेंज था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डोमेन में, -1 से कितना, पॉजिटिव 1। और रेंज कितना हो गया इसका, ये डोमेन हो गया, और रेंज कितना हो गया, -π/2 से पॉजिटिव π/2। आप लोगों को ये चीजें थोड़ी सी हल्की सी याद रखनी चलनी पड़ेगी कि अगर आपके पास फंक्शन दिया गया है तो उसकी डोमेन और रेंज कितनी है। अगर आपको डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर डोमेन और रेंज का नॉलेज नहीं है तो वहां पर क्वेश्चन दिक्कत पड़ती है। अब ये चीजें थी जैसे कि हमारे पास डोमेन और रेंज कैसे, जैसे आपने sin x का निकाला, cos x का निकाला, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan x, cot x, sin x एंड cos x। हालांकि अगली क्लास में आपको tan x और cot x का भी आंसर बताएंगे कैसे क्या करते हैं, लेकिन अगर हम जो है sin और cos को इजीली समझ जाते हैं तो tan cos cot x को समझ में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर sin x की जब मैं sin को इनवर्स में कन्वर्ट करता तो वहां पर रेंज कितनी होती है, -π/2 से पॉजिटिव 5, और डोमेन की रेंज कितना होता है, -π/2 से पॉजिटिव 5 और डोमेन कितना, -1 से पॉजिटिव 1। सिमिलरली जब आप y cos x को इनवर्टिबल फंक्शन बनाते हैं, इनवर्टिबल बनाने के बाद इसकी रेंज कितनी बनती है, वही -π/2 से कितना, पॉजिटिव 5/2, और रेंज कितना बनता है, रेंज -π/2 सॉरी पॉजिटिव 5/2, एंड डोमेन कितना होता है बेटा, डोमेन -1 से कितना, पॉजिटिव 1। अगर आप इनको इनवर्टिबल बनाते हैं तो इनवर्टिबल बनाने के बाद अभी हमसे मैं हल्का सा एक tan का और फंक्शन कर लेते हैं हम लोग, tan के बारे में। y equals to tan x, y equal tan x बराबर करते हैं कि y equal tan x है, तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। when if x equal to 0 then y equals to कितना होगा बेटा जी, tan 0, tan 0 कितना होगा बेटा, tan 0 equals to 0। if x equals to कितना बेटा, x equals to आता है π/2, then y is equals to 10π/2, sorry 10π/2, और 10/2 क्या होता है, not defined। क्लियर। सिमिलरली इफ अगर मैं x equals to -π/2 पुट करता हूं, -π/2 पुट करता हूं, then y equals to कितना होगा बेटा, y equals to 10 - π/2,
और टेन माइनस थीटा कितना होता है बेटा, टेन माइनस थीटा एज पर द 11th स्टैंडर्ड टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन पाई बाय टू, और माइनस नोट होता है माइनस नोट। क्लियर। तो एक सिंपल सी, अगर मैं खाली इतने को लेके चलता हूँ, बड़ी बात सुनना, इतने लेके, ये जीरो, ये पाई बाय टू, ये माइनस पाई बाय टू। क्लियर। जीरो आपने लिया, जीरो पर मैंने लिया, तो जीरो लेने से इनसे कितना हो गया, जीरो लेने से जीरो आ गया था। तो जब पाई बाय टू लिया था तो हम लोगों ने कितना आ गया था, ये आया था नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड तो ये यूं चला गया। और जब माइनस बाय टू लिया तो कितना हो गया, माइनस नॉट डिफाइंड। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन से ये आ गया पाई, यहाँ पर यहाँ आ गया थ्री पाई बाय टू। क्लियर। तो ये फंक्शन कुछ यूं से है, वो ऊपर जाएगा कुछ ऐसे कि ये क्लियर। सिमिलरली सर ऐसा, तो यहाँ पर भी देखो x की वैल्यू मैंने ये पुट करी तो y कितना आ गया, ये और सुना, x की वैल्यू ये पुट करने से y कितना आ गया, ये x ये पुट किया आप लोगों ने, y कितना आ गया, ये। लेकिन यहाँ पर दो x की सेम अलग अलग वैल्यूज के लिए x की, ये x1 है, ये x2 है, x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए y का सेम आंसर है। सो फंक्शन वास्तव में यहाँ भी इनवर्टिबल फंक्शन नहीं है। तो इनवर्टिबल बनाने के लिए इससे भी आपको रेंज, आपको एक ऐसा स्पैन तैयार करना है जहां पर x की कोई वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू सेम ना आए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये स्पैन, जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पैन लेता हूँ, बड़े बात सुना, यहाँ से यहाँ तक का स्पैन लेता हूँ, तो इस स्पैन के अंदर x की वैल्यू ये पुट करी, y इतना आ गया, x की वैल्यू ये पुट करी, y इतना आ गया, x की वैल्यू ये पुट की, y ये, x ये पुट किया आप लोगों ने बेटा, तो y इतना आ गया, x ये पुट किया, y इतना आ गया। तो अलग अलग x की अलग अलग वैल्यूज पुट करने से y की अलग अलग वैल्यू आई। तो यहाँ इसके अंदर, इतने के अंदर फंक्शन कैसा बेटा, ये इनवर्टिबल है। अगर मैं इनवर्टिबल बात ना करूं, तो इनवर्टिबल बात ना करूं तो आप यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की आप कौन सी वैल्यू जिसकी फंक्शन रियल हो और डिफाइंड हो। तो यहाँ पर मैं x की सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, ऑल द रियल नंबर्स, लेकिन क्या पुट नहीं कर सकता, पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू और माइनस थ्री पाई बाय टू, मतलब ओड ओड नंबर ऑफ द पाई बाय टू, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू मैं पुट नहीं कर सकता। अगर मैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पुट करता हूँ, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू या सेवन पाई बाय टू एटसेट्रा, इधर माइनस पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू एटसेट्रा, तो वहां पर वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो नॉट डिफाइंड, तो आप लोग ऑल द रियल नंबर्स कैन पुट, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या पुट नहीं कर सकते, आप x वो वैल्यूज पुट नहीं करते जो 2n + 1 into 5 है, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ 5 होगा बेटा जी। क्लियर। जब ओड मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो वहां पर वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनको पुट करने से आपके वैल्यूज कहां से कहां तक आई, y की वैल्यू कहां से कहां तक आई, y की वैल्यू आप x की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू है सॉरी कहां से कहां तक आई, तो आपके पास y की वैल्यू ना बस 5/2 पुट नहीं करना, 3/2 पुट नहीं करना, x की सारी पुट कर दे, लेकिन y की वैल्यू कितनी आती है, y की 0 आई, फिर इंक्रीज हुई 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 हुई, ये नॉट डिफाइंड करता है, ये डिक्रीज हुई हुई माइनस नॉट डिफाइंड करता है। तो डोमेन कितना आ गया हो जाए, ये तो डोमेन आ गया इसका, रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया बेटा कितना, यस माइनस नॉट डिफाइंड से पॉजिटिव नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इन्वर्टिबल करता हूँ तो इन्वर्टिबल करने के लिए मुझे ये स्पैन यूज करना पड़ेगा, और इस स्पैन के लिए तो इसमें जो हम रेंज लेकर डोमेन लेकर चले इतना नहीं, माइनस पाई बाय टू से पॉजिटिव पाई बाय टू, लेकिन ऊपर इंटरवल के अंदर, क्योंकि पाई बाय टू तो पुट ही नहीं करना होगा, तो ऊपर इंटरवल माइनस पाई बाय टू से कितना, पॉजिटिव पाई बाय टू, जब माइनस पाई बाय टू से पॉजिटिव पाई बाय टू लेकर चलेंगे तो ये आ गया कितना डोमेन, और रेंज से इसकी ऐसी की ऐसी बेटा की पॉजिटिव नॉट डिफाइंड से कितना हो गया माइनस नॉट डिफाइंड। तो अब जब इसको मैं इन्वर्टर बना चुका हूं तो इसमें डोमेन चेंजेस में होगी रेंज में, और रेंज चेंजेस में होता है डोमेन में। सो जब y = tan इनवर्स x होगा या x = tan इनवर्स y होगा, तो यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर। और रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इससे कितना -π/2 से कितना +π/2 अंडर द ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 को इंक्लूड नहीं करना लोगों ने। सो इस तरह से साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का सभी के बारे में बताया गया। आप लोग उनसे इसको फर्दर स्टडी कीजिएगा, और उसके बाद उनसे आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप लोग से ये चीजें फिर दोबारा क्लियर कराई जाएंगी। हालांकि ये चीजें 11th क्लास में सीखी थी आप लोगों ने, और 12th चैप्टर में फर्स्ट क्लास सिखाई गई थी, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं प्लीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।